Hi guys, Sarfahan here. Let's start paper 1 multiple choice of AS Chemistry, February March 2016, variance 12. Let's start with question number 1. Which compound contain two different elements with identical oxidation state? Now we have two different things. We need to find out two different elements, and on top of that we need to determine the identical oxidation state of both the different elements. Okay, so in option D, nitrogen has an oxidation state of -3, and I believe कि MCQ attempt करने के लिए अब आपको ये आना चाहिए, मैंने क्लास में करवाया आपको ये, ठीक है, that in ammonia mines the nitrogen की oxidation state is -3, hydrogen will remain +1 and chlorine is -1. तो इसमें तो कहीं पर भी oxidation state same नहीं है, which means D is incorrect. Over here sodium has an oxidation state of +1, oxygen has an oxidation state of -2, and sulfur in sodium sulfate is basically +6, which means oxidation state different है सारी की सारी, ये भी गलत. Magnesium has an oxidation state of +2, oxygen has an oxidation state of -1, hydrogen is an oxidation state of +1. and guys आप इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो OH है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये +2, ये -2, ये +1, ये -1. इसका मतलब आप +2 -2 के लिहाज से देख लीजिए, या +1 के लिहाज से, या ओवरऑल -1 है और +2 है. अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम तो नहीं है, which is why it's going to be incorrect option. And obviously A is going to be the right answer. But why A? Hydrogen has an oxidation state of +1. Oxygen has an oxidation state of -2. Over here, the oxidation state of chlorine is +1. So now hydrogen and chlorine both are different elements, and both of them have same oxidation state, which is why A is going to be the right answer. Okay, now question number 2. For the element sulfur, which pair of ionization energy has the largest difference between them? Okay, the question is talking about sulfur, and guys, sulfur is found in group 16 of the periodic table. All right, next, it contains 6 valence electrons. And that means biggest energy gap exists between 6th and 7th electron. So 6th and 7th electron means 6th ionization energy and 7th ionization energy. The 6th and 7th ionization energy, which means D is going to be the right answer. I hope you get the point. Okay, because जहां पर biggest energy gap होता है वहां shell change हो जाता है. इसका मतलब the first 6 electrons are removed from the valence shell. Okay, question number 3. Which ion has both more electrons than protons and more protons than neutrons? और उन्होंने हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस सारे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दिए हैं. सो अगर मैं यहाँ पर देखूं 1d माइनस, इसका मतलब इट हैज 1 प्रोटॉन, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज 1 न्यूट्रॉन. ऑब्वियसली वो कह रहे हैं आपसे मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हैं, और फिर वो कह रहे हैं मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो गए, व्हिच इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी. Oxygen has an atomic number of 8. All right, so it has 8 protons, and hydrogen has an atomic number of 1. So 8 plus 3 is going to be 8 plus 3 is going to be 11 proton. सही है? And obviously needs to be 11 electron, but the positive charge shows 1 electron चला गया, इसका मतलब electron 10 हो जाएंगे. And oxygen has a mass number of 16, atomic number 8. 16 minus 8 becomes 8 neutrons. Hydrogen doesn't have any neutron, right? So it has 8 neutron. So electrons, यहाँ protons electrons से ज़्यादा होगा, which is why it is also incorrect. Option C.
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका मतलब इसमें टोटल 9 प्रोटॉन्स होंगे एंड ऑब्वियसली 9 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, बट माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो गई कि मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, मास 8, तो 16 minus 8 becomes 8, और 1 2 minus 1 becomes 1, तो 8 plus 1 is going to be 9, तो 9 न्यूट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स सेम हो गए, इसका मतलब इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट and therefore D is going to be the right answer. And why D? Because ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 प्रोटॉन होंगे, ओके, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास 16 है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। मास 1, atomic number 1, so it has 1 proton, 1 electron and 0 neutron. So now you need to add all of them. This is 9 proton, obviously it's going to be 9 electron, but this minus charge means एक electron ज़्यादा add हो गया, तो वो हो जाएगा 10 electrons and then 8 neutrons. So look, more electrons than protons follow हो गया and more protons than neutrons भी follow हो गया, which is why D is going to be the right answer, okay? Next question, that is question number 4. Which species contain the smallest number of electrons? Again, examiner is talking about the smallest number of electrons. So smallest number of electrons हमें check करने, तो हमें सारे के सारे one by one सब check करने होंगे. Boron has an atomic number of 5. Since it has 3 plus charge, तो इसका मतलब 3 electrons remove हो गए. So this ion contain only 2 electrons. Beryllium has an atomic number of 4. 2 plus charge का मतलब 2 electrons चले गए, तो इसका मतलब it has 2 electrons. Okay. Hydrogen has an atomic number of 1, mass 1. So it has an atomic number of 1. इसका मतलब it has 1 electron. But this minus charge means एक electron gain हुआ, इसका मतलब it has 2 electrons. All right. Helium. Helium has an atomic number of 2, which means it has two protons and electrons. Since it has 2 electrons, plus charge का मतलब एक electron चला गया, इसका मतलब it has only 1 electron now. तो obviously least electron जो है वो option D में है, and therefore D is going to be the right answer. Obviously A भी wrong होगा इस situation में, B भी wrong है, C भी wrong है. Okay, let's move on to the next question. Question number 5. Nitric oxide and bromine vapor react together according to the following equation. Okay, delta H is minus, इसका मतलब reaction is exothermic. Okay, the reaction has an activation energy of plus 5.4 kilojoules per mole. What is the correct reaction pathway diagram for this reaction? Since it is an exothermic reaction, so energy profile diagram में for exothermic reaction product की energy reactant की energy से कम होती है. तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है. ठीक है जी. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होनी चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच का जो एरो है वो डाउनवर्ड होता है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो डाउनवर्ड डेल्टा एच का एरो होना चाहिए. डाउनवर्ड डेल्टा एच का एरो यहाँ पर भी है, डाउनवर्ड डेल्टा एच का एरो यहाँ पर भी है. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सही है. और ये डेल्टा एच पूरा का पूरा कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज ये एरो तो डेल्टा एच को रिप्रेजेंट नहीं करता. डेल्टा एच का तो एरो ये रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा डेल्टा एच. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया. तो सी इज इनकरेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट. नाउ द कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी, एंड ऑब्वियसली डेल्टा एच दोनों में सही है. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से. अब थर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी. सिंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज सो स्मॉल, दैट इज प्लस 5.4, तो ऑब्वियसली activation energy is not going to be like this, because the activation energy for exothermic reaction is always like this. Okay, ये है activation energy. याद रखिएगा, ये होती है activation energy exothermic reaction की, because it is such a small number, so it can't be this much, right? तो ये भी गलत हो गया, and right answer is D, because इसकी activation energy भी बिल्कुल ठीक है.
ओके तो एक्टिवेशन एनर्जी इज फाइन, डेल्टा एच इज फाइन, प्रोडक्ट कम होना चाहिए रिएक्टेंट से, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर रिएक्टेंट। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट है, व्हिच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, which series shows molecules in order of increasing bond length? So we have done this topic in such a detail कि मुझे ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोगों को ये बॉन्ड एंगल्स निकालने आते हो आप, सही है। सो मीथेन has 4 single bond in a 0 lone pair, which means it has an angle of 109.5 degree. BF3 has 3 single bond in a 0 lone pair with sp2 hybridization. Obviously it has an angle of 120 degree. Ammonia has 3 single bond in a lone pair with trigonal pyramidal geometry. It has an angle of 107 degree. All right. Water has a band shaped geometry because of 2 single bond and a 2 lone pair. Angle is going to be 104.5. Carbon dioxide has a linear geometry because of 2 single bond and a 0 lone pair, 180 degree. BF3 again 120 होगा आपके पास क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री होगी because of 3 single bond and a 0 lone pair. अमोनिया मैंने आपको बता दिया 107 डिग्री होता है, मीथेन मैंने आपको बता दिया 109.5 डिग्री होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया आपको 180 डिग्री होता है, ammonia is again 107 degree, methane is 109.5 degree, and water is going to be 104.5 degree. All right. So अगर आपका ये एरिया वीक है तो काइंडली गो थ्रू द टॉपिक जो कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, एंगल्स इन सब से रिलेटेड करवाया है, बहुत डिटेल टॉपिक शेयर किया था हमने। एग्जामिनर जो है वो हमसे मालूम कर रहे हैं इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, तो भाई इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ये भी गलत क्योंकि इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया तो ये भी गलत, सही है। ये यहां से इंक्रीज हुआ और फिर ये भी इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट ये इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया तो ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the volume of steam produced when 1 gram of ice is heated to 323 degrees Celsius at a pressure of 101 kilopascal? Okay. 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 First of all, let's find out the moles of ice. So 1.0 divided by 18, you will get what? 0.055 moles. Okay. Next, this temperature is 323 degrees Celsius and 101 kilopascal. Okay. Steam. So 1 mole has 0.055 moles. So 1 mole has 2.24 dmq. And if we have 0.055 moles, it's going to be how much into 24? 1.33. 1.33 dmq at 298 Kelvin. Okay, because 24 dmq वॉल्यूम जो है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे room temperature is basically 25, which is 298 Kelvin. Examiner is asking for एक मिनट, hold on a second, इसको 25 कर लो, कोई इशू नहीं है, 25 degrees Celsius. All right, examiner wanted to ask the volume at this temperature, so let's make it 25 degrees Celsius gives you how much? 1.33 dmq. 323 degrees Celsius gives you how much? Into 323 divided by 25 is going to be, oops, it doesn't work, it's not working. मुझे मैं एक और पैटर्न से करने की कोशिश कर रहा था, just hold on a second. 293 23 plus 273 is going to be 596, so 596
multiplied by 1.33 divided by 298. Oh yes, oh yes, oh yes. That's going to be the right answer. I was doing the right thing. Hold on, hold on, hold on. ये जो वॉल्यूम है आपके पास, ये 24 डीएम क्यूब है, और ये एट आरटीपी, और आरटीपी के ऊपर वॉल्यूम के टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। इसका मतलब मैंने ये जो वॉल्यूम डिटरमिन किया है ये 298 केल्विन पे डिटरमिन किया है। एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं कि भाई इस टेम्परेचर पे डिटरमिन करो, तो मैं इस टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड कर देता हूँ। पहले मैंने शॉर्टकट लगाने की कोशिश की थी, वो उसने वर्क नहीं किया, तो मैंने कहा चले अब इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 596 केल्विन। ओके, तो 298 केल्विन पे आपको 1.33 डीएम क्यूब मिल रहा है। अगर आपको 596 केल्विन पे पूछा जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 596 मल्टीप्लाई बाय 1.33 divided by 298 is going to be 2.66। तो 2.66 डीएम क्यूब कह रहे हैं, तो राउंड ऑफ करके मैं इसको 2.7 डीएम क्यूब कर सकता हूँ, एंड 2.7 is basically C। C is going to be the right answer। By the way, आप PV equals to NRTB अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को और कितने तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। ओके, आप इसमें PV equals to NRT अप्लाई करेंगे। प्रेशर आपको किलोपास्कल में दिया हुआ है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे। मास आपको गिवन है 1 ग्राम, MR ऑफ आइस 18 होगा, तो ये N की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है, तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, solid carbon dioxide is similar to solid iodine because both are sublime compounds, so both of them can decompose easily. In its structure and properties, carbon is in group 14, silicon dioxide is in group 14 compound. Okay, which statement about solid carbon dioxide and solid silicon dioxide is correct? Let's read one by one. Both solid exist in a lattice structure. Wrong, because ये lattice होता है और ये lattice में solid carbon dioxide exist in lattice. ये solid है तो ये भी lattice, ये भी solid है तो ये भी lattice. That's right. सही है? That's right. ये याद रखिएगा कि examiner is talking about solid. Examiner is talking about solid. So solids have crystalline lattice structure. Okay. Lattice structure होगा इसका because of solid state, और इसका तो होता ही lattice है। मैंने wrong पहले इसलिए किया था because I forgot to highlight this कि ये gas नहीं है, ये solid है। अगर gas होता फिर incorrect option हो जाती। Anyhow, let's read another choice. Both solids have simple molecular structure. Wrong. इसका joint molecular होता है, इसलिए ये गलत हो गई option. Next पढ़ते हैं, both solids have atoms joined by single covalent bond. Not at all, because carbon dioxide में carbon और oxygen का double covalent bond होता है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। Both solids change spontaneously to a gas at STP, not STP, at RTP. Okay, इसलिए ये भी गलत हो गया। STP is basically 22.4 dm cube। ठीक है, इसको कहते हैं standard temperature pressure। Okay, question number 9. An article in a science magazine contained the following statement. Statement read करते हैं। It is lighter than the feather. It is lighter than the feather. Stronger than steel. Stronger than steel. That is graphene. And incredibly flexible and more conductive than copper. Which form of carbon is being described? Graphene. That's a fact. Okay. Question 10. Which equation has an enthalpy change of reaction which corresponds to the standard enthalpy change of atomization of chlorine? Atomization of chlorine.
तो क्लोरीन की अगर मुझे एटमाइजेशन करनी है तो मैंने आपको क्लास में करवाया है, आपके पास ये लिखी हुई है इक्वेशन। क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप इसको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ लगाएंगे। अब आप नोट करें कि ये इक्वेशन कहाँ पर गिवन है। ये इक्वेशन गिवन है आपको ए में, एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। भाई क्लोरीन इज अ गैस एट आरटीपी, एग्जामिनर ने लिक्विड कर दिया है उसको, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी फॉर द सेम रीजन इज आल्सो रॉन्ग। और एटमाइजेशन जो होती है वो हमेशा 1 मोल ऑफ गैसियस एटम के लिए होती है, जबकि एग्जामिनर ने यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम बना दिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये भी गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 11। Question 11. Oh my goodness, that's KC and KP. Okay, no issue. In an experiment, 2 mole of hydrogen and 3 mole of iodine were heated together in a sealed container. Okay, so हमारे पास actually हाइड्रोजन है, आयोडीन है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। ओके, ये इनिशियल मोल्स होंगे, इक्विलिब्रियम मोल्स होंगे। हाइड्रोजन इनिशियली आपके पास कितना है 2, आयोडीन आपके पास है 3, एंड ऑब्वियसली ये आपके पास होगा 0। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। And allowed to reach equilibrium at a fixed temperature. The container had a fixed volume of 1 dm cube. इसका मतलब volume is given, that is 1 dm cube. फिर वो कह रहे हैं at equilibrium there were 2.40 moles of iodine present in the mixture. Okay, so in the mixture 2.40 iodine were present. So let's take out the reacted moles from here. इनिशियली आपके पास आयोडीन के 3 थे, 2.4 मोल्स एट इक्विलिब्रियम रह गए, बच गए, तो रिएक्ट कितने हो रहे हैं 0.6 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशो है। अगर यहाँ से 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए तो यहाँ से भी 0.6 मोल्स रिएक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। सो इनिशियली मेरे पास 2 है, रिएक्ट हो गए मेरे पास 0.6, तो बच कितने जाएंगे, I think 1.4. या 0.4 मोल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं 0.4 मोल्स यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, अब 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए हैं। आप सब जानते हैं कि इनके दरमियान 1:2 का रेशियो है, तो अगर 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो जाहिर सी बात है 2 मोल्स हैं यहाँ पर, तो डबल अमाउंट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज 1.2, राइट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए इन सबको मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो 1 से डिवाइड ना करें क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम है। ओके, अब केसी का एक्सप्रेशन आपने निकालना है, वैल्यू, तो केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट है आपके पास 1.2, इसका स्क्वायर कर लो आप क्योंकि 2 मोल्स हैं। ये आपके पास 0.4 आ जाएगा और ये आपके पास एक्चुअली 2.40 आ जाएगा। केसी की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी आएगी आपके पास, 0.429 आ जाएगी आपके पास, 0.429। तो 0.429 कहां पर गिवन है, सी में गिवन है, which is why C is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Okay, question 12. Consecutive elements X, Y, and Z are in period 3 of the periodic table. Element Y has the highest first ionization energy and the lowest melting point of these 3 elements. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एलिमेंट Y है आपका, उसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो भाई चलो 2 चीजें हैं यहाँ पर। तो पहली चीज तो ये है कि हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड 3 बना देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। ठीक है, ये मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड दिखाया हुआ है, तो ट्रेंड मैं बना देता हूँ यहाँ पर। सही, ऑलराइट। तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, तो अगर एक्स वाई जी मैं इनको लेता हूं तो जाहिर सी बात है वाई की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट है, तो इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को लेता हूं, तो फॉस्फोरस की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट इसका होगा। पॉसिबिलिटी है हमारे पास highest first ionization energy and lowest melting point. Oh, we cannot use aluminum because aluminum का melting point जो है और मैग्नीशियम का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट का भी बना देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने वैसे बना के दिए हैं मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट। और ये फॉस्फोरस एंड देन सल्फर, तो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम का आ गया, ये सिलिकॉन सबसे हाईएस्ट है, फिर फॉस्फोरस P4 और फिर सल्फर एंड देन फिर क्लोरीन एंड देन आर्गन, राइट। सो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब मैं इनको तो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं हुए आपके। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं हो रहा है आपके। अब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट हैं आपके पास। सही है, और इन तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट में आप जानते हैं कि फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, तो फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, और आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट है इन तीनों में। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट इसका है, तो इसका मतलब फॉस्फोरस हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब जो आपके कंसेक्यूटिव एलिमेंट है ना वो ये तीन है, तो सिलिकॉन कंसेक्यूटिव है, तो सिलिकॉन सबसे पहले, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन डूइंग सच क्वेश्चंस, बिकॉज़ आपको स्केचेस बहुत ध्यान में होने चाहिए हर तरह से। ठीक है, अगर दोबारा से सुन लीजिए, अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट है और मैं ये तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट ले रहा हूँ, तो मैं इन तीनों को निग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो चलो ठीक है मैग्नीशियम की ज्यादा है, बट मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का सेम है, जबकि वो कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट है, तो इसलिए मैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के ऑप्शन को इग्नोर कर दूंगा, यानी मैं इस ऑप्शन को इग्नोर करूंगा, मैं इस ऑप्शन को भी इग्नोर करूंगा। ठीक है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो एलिमेंट वाई है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट है, तो अगर ये वाई है आपका, लेट्स सपोज कंसेक्यूटिव ऑर्डर में, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है, ये रहा, इसका मतलब ये भी गलत। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. When dealing with the spillage of metallic sodium, it is important that no toxic flammable products are formed. ठीक है, which material should be used if there is a spillage of metallic sodium? अब आप जानते हैं कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, और ये क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब ये मेटल कैन रिएक्ट विद नंबर 1 एसिड, इसका मतलब ये ऑप्शन निग्लेक्ट कर देंगे। नंबर 2 वाटर, इसका मतलब ये भी निग्लेक्ट कर देंगे। एंड नंबर 3 अल्कोहल, आपको याद है मैंने अल्कोहल में इसका रिएक्शन करवाया, आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है,
तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सैंड एंड सोडियम। इफ देयर इज नो रिएक्शन, ऑब्वियसली आप उसको नो टॉक्सिक और फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी उसके थ्रू, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। Question 14, chlorine gas is widely used to treat contaminated water. Okay, which species present in water when chlorine gas has been added and responsible for killing bacteria? मैंने आपको क्लास में बताया था और मैंने कुछ ऐसे पहले दोबारा से रिपीट भी किया है पेपर में कि जब आप क्लोरीन को वाटर में प्लेस करते हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl में कन्वर्ट होता है और HClO में कन्वर्ट होता है। इस कंपाउंड को हम क्लोरिक वन एसिड कहते हैं और साथ में बस, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो एक्चुअली अगर मैं इसका आयन देखूं तो वो ClO नेगेटिव और H प्लस होगा। सो गाइस, दिस एक्चुअली सर्व एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप चेक करें ये कहां पर लिखा हुआ है, ClO माइनस ये लिखा हुआ है आपके पास, एंड देयरफॉर आई बिलीव D is going to be the right answer. Okay. Okay. यही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बेटा बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प करता है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, व्हिच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट? अमोनिया की जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। अमोनिया माइंस की जो शेप है वो टेट्राहीड्रल होती है। अमोनिया मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होते हैं और अमोनिया माइंस में भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। सो अगेन सच क्वेश्चन, आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो, ठीक है। 16 16 पे चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड गैस हैव डिफरेंट थर्मल स्टेबिलिटीज। ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसका कोवलेंट बॉन्ड वीकर है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका कोवलेंट बॉन्ड वीकर, तो ऑब्वियसली ये बहुत इजीली डिकम्पोज होगा, ये मुश्किल से डिकम्पोज होगा। सही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है इसका, और आप यहाँ लिख सकते हैं वीकर बॉन्ड होता है इसका। और वीकर बॉन्ड इसलिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसलिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। ओके, दैट मींस डिकम्पोज इजीली। आगे बढ़ते हैं। The difference is due to the difference in the energies of the sum of the covalent bonds that are involved in the decomposition. Okay, which identifies the more stable of the two compounds and give the correct explanation. More stable is basically HCl, hydrogen chloride, because उसका stronger bond है। Stronger bond होगा, आसानी से decompose नहीं होगा। And reason is the carbon chlorine bond is stronger than iodine. The chlorine bond is stronger than iodine bond. या फिर the HCl bond is stronger than HI bond. I think B is more sensible. Okay, because HCl bond is stronger than HI bond, so B is going to be the right answer. Okay. Question number 17. Ammonium sulfate and ammonium nitrate are used as fertilizers. These salts have different percentages by mass of nitrogen. They have the same effect as each other on the pH of neutral soil. Which row is correct? Higher percentage by mass of nitrogen. Oops, I need to find out. So we have two. The first one is ammonium nitrate, the second one is ammonium sulfate. The percentage by mass of nitrogen to निकालनी, percentage by mass of nitrogen निकालो। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। इसमें दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का AR होता है 14, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम है। अमोनियम नाइट्रेट का MR 80 होता है, इनटू 100 करो, सो इट्स गोइंग टू बी 35%। आई थिंक 28 divided by 80 into 100 is going to be 35%. Okay, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम परसेंटेज बाय
मास ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं इन अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में 2 नाइट्रोजन है तो 14 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय अमोनियम सल्फेट का एमआर। अमोनियम सल्फेट का एमआर होता है 132.1। अगर आप कैलकुलेट करें into 100 करें, so it's going to be how much? 28 divided by 132.1 into 100, so it's going to be 21.19%। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गई कि अमोनियम नाइट्रेट की परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब अमोनियम नाइट्रेट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई एक ज्यादा है, तो एक ठीक है। अच्छा, अब आप सब जानते हैं कि अमोनियम आयंस जो हैं वो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो पीएच को डिक्रीज करता है सॉइल की, तो decreases the pH and therefore A is going to be the right answer. Okay, all right, let's move to question number 18. River water in a chalky agricultural area contain these ions. In a water treatment plant, such water is treated by adding a calculated quantity of calcium hydroxide. What will be the precipitated from the river water following the addition of calcium hydroxide? Guys, ये soluble होता है, all nitrates are soluble, which means these options are incorrect, and therefore B is going to be the right answer because calcium carbonate is insoluble in water. Okay. Question number 19. After black and white photographic film has been developed, unreacted silver bromide is removed by reaction with sodium thiosulfate. What is the function of thiosulfate ion? इससे पहले कि हम thiosulfate ion का function determine करें, इस situation में मैं आपको याद करवाता हूं कि मैंने आपको यही रिएक्शन क्लास में अमोनिया के थ्रू करवाया, राइट? सो अगर मैं AgBr को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को हमने डायमाइन सिल्वर 1 आयन का नाम दिया था, प्लस ये ब्रोमाइड आयन आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इस केस में व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया हियर? अमोनिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व दिस कंपाउंड, सो अमोनिया is used to dissolve AgBr, और मैंने एक पॉइंट और भी बताया था, by forming dative bond with silver ion. Okay, so अगर इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो AgBr को डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियसली NH3 की जगह एग्जामिनर ने सोडियम थायोसल्फेट यूज किया, तो दिस हैज द सेम फंक्शन, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व AgBr, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। चलें बाकी ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। AgBr में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। इस केस में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं, तो लेट्स सपोज सिल्वर इज X. Thiosulfate has 2- charge. We have 2 thiosulfate ion into 2, whole charge equals to -3, then X equals to +1. That means the oxidation state of silver is +1 on the reactant side, is +1 on the right hand side, which means there is no change in oxidation state of silver, and therefore silver is neither oxidized nor reduced, and therefore B and D is going to be the incorrect option. Let's talk about C, to reduce bromide ions. Let's check bromide ions again. Bromine has an oxidation state of -1 in AgBr, and bromine has an oxidation state here is -1. So still there is no change in oxidation state of bromide, which means bromide may be koi reduction oxidation nahi ho rahi, which means C is also incorrect. I hope it makes sense to you. Question number 20. People who take statin drugs to control their blood cholesterol may also take coenzyme Q10. The diagram shows a simplified structure, one form of this coenzyme. Which row describe this structure correctly?
The coenzyme is aldehyde or ketone. Guys, this is ketone. This is ketone. All right. So ketone is going to be the correct one. इसका मतलब A और B incorrect होंगे. Number of pi bonds in one molecule. We have one pi bond here, second here, third here, fourth here, and fifth here. Okay. So basically, फोर से ज्यादा है, तो फोर से ज्यादा है तो इसका मतलब n+4 हो जाएगा, यानी ज्यादा है n से. ठीक है, फोर से ज्यादा है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. बिकॉज हमारे पास डबल बॉन्ड ये है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी आपका है, ये भी आपका है, और ये भी डबल बॉन्ड है. तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल is greater than 4, which is why n+4. Okay. Next, question 21. Geraniol and nerol are compounds found in some flower fragrances. They are isomers of each other. Okay. If they are isomers of each other, what type of isomerism is shown here? Okay. CH3 same, carbon same, CH3 same, double bond same, CH same, CH2 CH2 same, carbon CH3 same, double bond same. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास CH2OH है, यहाँ पर एग्जामिनर ने CH2OH रखा है. ओके. और यहाँ पर जो है वो H है, जबकि H यहाँ पर कर दिया है. Oh my goodness, guys, look, एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया पूरा. ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि 4 different groups are attached with a double bonded carbon atom. And according to my lecture, if 4 different groups are attached with a double bonded carbon atom, this might exhibit geometrical isomerism, cis trans. और मैंने कहा था कि जो heavier group होता है, जिसका AMR या AR सबसे ज्यादा होता है, उसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करोगे ऑब्वियसली. इन दोनों में से इसको B से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि इसका मास कम है, और इसको A से रिप्रेजेंट करोगे. तो डायगोनली अटैच्ड हो रहे हैं लोअर masses के फंक्शनल ग्रुप्स या ग्रुप्स, राइट. इसका मतलब ये ट्रांस है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हियर. दिस ग्रुप is represented by A and this group is represented by B. Okay, on the other hand, this group is represented by A and this entire group is represented by B. That means this is A guys, and this is B guys. So lower masses के जो ग्रुप हैं वो सेम साइड पर हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के. इसका मतलब ये सिस हो गया. तो इसका मतलब ये ट्रांस है और ये सिस है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स जब अटैच होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो हम सिस ट्रांस को डिटरमाइन करने के लिए एमआर लेते हैं, राइट. So right answer is going to be obviously B. Okay, B is going to be the right answer. Question 22. A section showing 2 repeating units of an addition polymer is shown. What is the identity of the monomer that produced this polymer? आप नोट करो, ये आपका पॉलीमर है और फिर सेम यूनिट रिपीट हुआ है. एग्जैक्टली. सो इट्स गोइंग टू बी योर एल्कीन. तो ये मैंने कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड कार्बन लिखा, इस कार्बन के साथ एक CH3 है, इस कार्बन के साथ भी एक CH3 है, इस कार्बन के साथ भी एक CH3 है, और इस कार्बन के साथ एक Cl है. ऑलराइट. तो अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन लेवल के ऊपर लिखूं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना के लिखूं, तो ये इस तरह से होगा. CH3 कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 and then CH3, right? Now we know कि हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन है. इसका मतलब ये ब्यूट 2 इन है
और ब्यूटूइन कहां पर गिवन है? ब्यूटूइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में गिवन है, एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, और जाहिर सी बात है अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 क्लोरो, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3' मिथाइल। ओके, राइट आंसर इज बी। वैसे बहुत आसान है क्योंकि हमें हेक्स टू ब्यूटूइन कहीं और लिखा हुआ नहीं है एग्जामिनर ने, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है butene 1,4-diol is converted into two step through an intermediate X into oxobutane dioic acid. Okay, what could be the reagent for step 1 and what is the intermediate X? Okay, that's going to be crazy. अच्छा, पहली चीज तो ये देखो कि ये CH2OH है, ये कन्वर्ट हो गया CWH में, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली ये CH2OH है, ये कन्वर्ट हो गया CWH में, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? एक स्टेप तो मुझे पता चल गया कि इस पूरे मैकेनिज्म में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका कंफर्मेशन मुझे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पता चल रहा है, राइट? लेकिन अब तुम नोट करो, ये बहुत टेक्निकल है, इट्स नॉट एन इजी थिंग कि तुम्हारे पास यहाँ एल्कीन है, लेकिन वो एल्कीन अब कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। तो एल्कीन से कीटोन कब आया होगा? एल्कीन से कीटोन उस वक्त आएगा जब आप इस एल्कीन को स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हो जाएगा CH2OH, CHOH, ये हो जाएगा आपका CH2, एंड देन फिर हो जाएगा CH2OH। ओके, ऑन द अदर हैंड अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? KMnO4। तो आप नोट करो, ये CH2OH ऑक्सीडाइज होकर CWH, ये CH2OH ऑक्सीडाइज होकर CWH, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन, और ये CH2 विल रिमेन एज इट इज। तो फर्स्ट स्टेप में स्टीम एंड देयरफॉर C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, और सेकंड स्टेप के अंदर या, और ये हमारा X है, दिस इज इंटरमीडिएट X, ठीक है? तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज अगर आप कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवाते तो डायोल बनते, जब डायोल बनते तो 2 कीटोन आते, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 कीटोन है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं हॉट एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाता तो ये एल्कीन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से तो रिएक्शन करेगा, K2Cr2O7 से रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी गलत हो जाता। सही है, और ये गलत इसलिए भी होता है क्योंकि जो उसने इंटरमीडिएट X बनाया हुआ है वो एल्कीन है। जब एल्कीन हॉट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ओनली, जबकि यहाँ पर कीटोन भी बना हुआ है, इसलिए भी गलत है। एंड सेम ये गलत है क्योंकि उसने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करके सेकेंडरी अल्कोहल भी बना दिया है, जो कि मुमकिन नहीं है। सही है, ये दोनों तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एल्कीन तो रिएक्शन ही नहीं करता पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से, तो आपने अल्कोहल कैसे बना दिया? मुमकिन ही नहीं है कि अल्कोहल बने, इसलिए डी भी गलत। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 24, hydrogen bromide can be added to T to give compound U. Compound U can be hydrolyzed to compound V. Okay. 4 students W, X, Y, and Z made the following statement. चलें one by one statement देखते हैं. All the atoms in a molecule of T lie in the same plane. Not at all. क्योंकि ये जो कार्बन एटम्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, टेट्राहीड्रल हैं, सेम प्लेन पे नहीं होंगी। ठीक है, सेम प्लेन पे नहीं होंगी, इसलिए
W गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, compound V contain only one chiral center. Compound V contain only one chiral center. It is also incorrect because ये भी chiral carbon है और ये भी chiral carbon है. So you have two chiral carbon atoms, not one. उसने one कहा है, which is wrong. ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेप 1 इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट्स करेक्ट। उसकी वजह ये है कि जो स्टेप 1 है उसमें एल्कीन है, एंड एल्कीन ऑलवेज अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही है। जेड देख लेते हैं, लास्ट है आपका। स्टेप 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एन अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट। तो Y and Z बेसिकली करेक्ट होंगे, and therefore D is going to be the right answer. Question number 25. Question 25. Structural isomerism and stereoisomerism should be considered in answering this question. Compound J is reacted with KOH dissolved in ethanol. 3 isomeric alkenes with formula C4H8 are formed. 3 isomeric alkenes and compound J reacts with KOH dissolved in ethanol, that indicates the elimination reaction. तो अगर एक अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है एल्कीन बनेगी, तो मुझे जो एल्कीन बनानी है वो 3 बननी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी एलिमिनेशन करवाऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्कीन मिलेगी, और वो है ब्यूट 1 ईन, और उसका स्ट्रक्चर ये होगा, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट। सही है, यानी यहां से H और यहां से Br दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HBr, और बिटवीन द कार्बन एटम यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा। दैट्स अ शॉर्टकट टेक्निक, डिटेल तो काफी है इसकी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखो, HBr, एक H यहां से निकल सकता है, दूसरा H यहां से निकल सकता है। अगर ये दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे, ये दोनों हटेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ वाला H और ये वाला Br निकालता हूं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इसका मतलब B गिव्स यू 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। पहली है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 and then CH3, and that's your but1 ene. ओके, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहां एग्जिस्ट करे, राइट। इसको कहते हैं but2 ene, और आप जानते हैं कि जब हम but2 ene की बात करते हैं तो यहाँ सिस भी होता है और ट्रांस भी होता है, राइट। तो यहाँ से टोटल कितनी एल्कीन्स मुझे मिल रही हैं, एक मिली सिस but2 ene, दूसरी मिली ट्रांस but2 ene, और तीसरी मिली but1 ene, तो टोटल 3 एल्कीन्स मिल रही हैं, एंड देयरफॉर B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आप ऑप्शन डी सी को भी देख लें। अगर मैं यहां से H और यहां से Br दोनों को हटा दूं, वेट, अगर मैं यहां से H और यहां से Br को हटा दूं तो एल्कीन मुझे एक्चुअली यहां मिलेगी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओनली वन एल्कीन, 3 नहीं मिल रही, इसलिए गलत। यहां से भी क्या मिला था, ओनली 1 एल्कीन, इसलिए ये भी गलत। डी को देखो, अगर मैं एक H यहां से लूं और उसको Br से रिएक्शन करवा दूं तो डबल बॉन्ड जो है वो बिटवीन दीज 2 कार्बन शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड दीज 2 कार्बन शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड ये बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो इधर भी एक ही एल्कीन मिली है, ओनली 1 एल्कीन, ये भी गलत। ओके, क्वेश्चन 26, which row correctly shows a primary, secondary and a tertiary alcohol? प्राइमरी अल्कोहल की खास बात क्या है, CH2OH होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है CH2OH? CH2OH यहाँ लिखा हुआ है, CH2OH यहाँ लिखा हुआ है, CH2OH यहाँ लिखा हुआ है, और CH2OH ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की जजमेंट क्या है, CHOH हो आपके पास, तो CHOH कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। CHOH यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया।
CHOH यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी। सही है, क्योंकि ये CHOH आ गया आपके पास। और टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या खास बात है? टर्शियरी अल्कोहल की खास बात यह है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, यानी ये सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन यहाँ नहीं है, ये सिचुएशन यहाँ पर भी नहीं है, ये सिचुएशन यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। देखो इसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और 3 अल्काइल ग्रुप भी है, which is why D is going to be the right answer. Okay, 27. The fragrance compound of perfumes are often dissolved in solvent Y, which has the molecular formula C7H14O4, C7H12O4. It is made by reacting propane 1,2-diol with ethanoic acid in the presence of an acid catalyst that indicates the formation of ester. Okay, because ये आपका अल्कोहल है और ये आपका एसिड है। So when these two react together, you will get an ester. एस्टर फॉर्म होगा। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एस्टर बनेगा। वेट, यहाँ लिख दीजिए कि ये एस्टर बन रहा है। ओके ओके, अब जो एसिड है, देखो वी हैव 2 functional groups of alcohol, इसका मतलब 2 moles of ethanoic acid should react together। तो 1 mole of ethanoic acid हम यहाँ लिखते हैं और 2nd mole of ethanoic acid हम यहाँ लिखते हैं। अब हम इन सबको रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ये CH3 as it is, ये CO as it is। Guys remember one thing, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H, राइट। तो अब हम देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हमारे पास है CH2, ये है हमारे पास CH, देन CH3, देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या है? CO एंड देन CH3। ये आपका कंपाउंड हो गया और हमें ये देखना है कि ये कंपाउंड किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ओके देखो बहुत माइनर सा चेंज है। ये CH3 ये रहा, CO ये है, ऑक्सीजन ये है, CH2 ये है, CH ये है, CH3 ये है, इसके बाद ऑक्सीजन है, जबकि यहां पर एग्जामिनर ने कार्बन कर दिया, विच इज वाई ए इज इनकरेक्ट। ओके, फिर टैली करते हैं। ये CH3 ये रहा, oops, ये CH3 ये रहा। ओके, उसके बाद आपके पास है CO, एग्जामिनर ने ऑक्सीजन कर दिया, विच इज वाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में भी कुछ ऐसा ही है। ये CH3 ये रहा, ये CO ये है, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये CH ये है, ये वाला CH3 ये रहा, ये CH2 ये रहा, और अब थी ऑक्सीजन, एग्जामिनर ने यहां पर कर दिया है कार्बोनाइल ग्रुप, विच इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये CH3 ये रहा, ये कार्बोनाइल ये है, ये ऑक्सीजन है ये रहा, CH2 आ गया ये रहा, CH आया ये है, ये CH3 है ये रहा CH3, ये ऑक्सीजन है ये आ गया ऑक्सीजन, ये CO है ये CO आ गया, ये CH3 है ये CH3 आ गया, which is why D is going to be the right answer. Question number 28. Which mixture could be used to produce propyl methanoate? Propyl methanoate, तो भाई ये आपका एसिड का पार्ट है, इसका मतलब मेथोनिक एसिड शुड बी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, और ये आपका अल्कोहल का पार्ट है, इसका मतलब प्रोपेनॉल। सो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3
CH2OH, और मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया है HCOOH, जिसको आप HCO2H करके भी लिख सकते हो। तो चेक करो कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। HCO2H कहाँ पर अवेलेबल है? HCO2H यहाँ अवेलेबल है, HCO2H यहाँ अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब प्रोपेनॉल चेक करो कहाँ पर है। CH3 CH2 CH2OH, वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, which is why C is going to be the right answer। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसमें मेथनोइक एसिड ही नहीं है, और B इसलिए गलत क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन का अल्कोहल हो गया, which is not possible। Okay, question 29, which statement about polychloroethene is correct? Polychloroethene is correct। पॉलीक्लोरोइथीन करेक्ट क्यों है, क्यों है, क्यों है? पॉलीक्लोरोइथीन क्यों करेक्ट है? ओके, चलिए अगर है तो कोई बात नहीं। Okay, let's read one by one। The polymer can be cracked to produce chlorinated alkenes, not at all। जब क्रैकिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन। The polymer has harmless combustion product। Yes, HCl बनता है, harmful combustion product होता है, ठीक है, तो B is going to be the right answer। Okay, the polymer is the repeat unit of polymer is this। यार ये repeating unit होगा इसका, अब इसका repeating unit अगर है तो क्लोरीन तो 35.5 होता है, राइट, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। जरा निकालते हैं इसका MR रिपीटिंग यूनिट का। 35.5 प्लस 12 times 2 plus 3, it's going to be 62.5। तो इस रिपीटिंग यूनिट का मास आ रहा है 62.5, जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं MR 97, which is also wrong, ठीक है। The polymer is readily biodegradable। गलत, addition polymer are non biodegradable। Okay, the right answer is B। Question 30, which row of table is correct? Increasing number of carbon atoms। ethyl methanoate, ethyl methanoate, एक मिनट, ethyl methanoate, ये है आपके पास HCO2C2H5, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर है आपके पास मिथाइल प्रोपानोएट, ये हो जाएगा CH3 CH2 CO2 CH3। इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 3। इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1 2 3 4, सही है। उसके बाद है पेंटाइल पेंटानोएट, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इसी में ही होंगे। पेंटाइल का मतलब 5, पेंटानोएट का मतलब 5, 10 कार्बन एटम्स है। पेंटाइल पेंटानोएट, CH3 CH2 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 CO2 and then CH2 1 2, my goodness, 2 3 4 5, so I think 10 carbon atom है इसमें। Okay, and then propyl butanoate, propyl butanoate का मतलब 4 कार्बन एटम का एसिड होना चाहिए, तो CH3 CH2 CH2 CO2, और प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन एटम्स, CH2 CH2 CH3। now total we have how many carbon? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स। so सबसे ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं, ठीक है। कार्बन एटम कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं भाई? कार्बन एटम कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं? चलें देखते हैं। इसमें 3 कार्बन एटम है, मिथाइल प्रोपेनोएट में 4, देन 10 एंड देन 8। तो भाई इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, इसलिए गलत। अच्छा दोबारा देखते हैं नेक्स्ट में।
इथाइल मिथानोएट में 3 कार्बन एटम, मिथाइल प्रोपेनोएट में 4, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट में 8 और पेंटाइल पेंटानोएट में 10. तो इंक्रीज हो रहे हैं, which is why B is going to be the right answer. Okay, all right. Next is question number 31. Which molecule have an overall dipole moment? Overall dipole moment, have an overall dipole moment. So carbon monoxide has a linear geometry and obviously इसका जो dipole moment है वो cancel out नहीं हो सकता. सही, oxygen is more electronegative element, it pulls the electrons of carbon toward itself. So this is the dipole moment की direction. इसका मतलब first statement is right because it has a dipole moment. pH3 is phosphine. phosphine की जो ज्योमेट्री है वो exactly trigonal pyramidal होती है जैसे अमोनिया की, and obviously phosphorus is more electronegative element, so वो इस direction में electron pull करेगा. Obviously dipole moment cancel out नहीं होंगे because of its geometry, trigonal pyramidal, and obviously second is also correct. Third, कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ लीनियर ज्योमेट्री, और मैंने आपको पढ़ाया कि जब लीनियर ज्योमेट्री होती है तो ये ऑक्सीजन पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुल करेगा. सिंस बोथ ऑफ देम हैव सेम मैग्नीट्यूड दे विल कैंसल आउट एंड सो नो नेट dipole because of linear geometry in carbon dioxide, which is why third is wrong, and therefore B is going to be the right answer. Question 32. The diagram illustrates the enthalpy changes of the set of reactions. The enthalpy change for the transformation U2R is plus 40. U2R के लिए मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा. तो अगर मैं इस तरह से जाऊंगा, देखो ये एरो है तो प्लस है, मैं इस तरह से जा रहा हूं तो ये -92 हो जाएगा. अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन -134 और मैं बैकवर्ड जा रहा हूं तो ये +134 हो जाएगा. सही है, तो -92 + 134 इज गोइंग टू बी हाउ मच, +42 हो जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. सही है. उसके बाद दूसरा सुने, enthalpy change for the transformation of T2S is endothermic. T2S is endothermic. Guys, this is exothermic and this is also exothermic. तो ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो जाएगा. देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है ना. तुम अगर यहां से यहां जाओगे तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस, दैट इज -92. ओके, और ये भी कितना है, -75. तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकता. राइट, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. Question 33. Which statement about reversible reactions are correct? Which statement about reversible reactions are correct? Okay, देखते हैं. Increase in concentration of a reactant always increases the concentration of the product. Yes, obviously, because जब concentration of reactant increase करोगे तो equilibrium forward direction में जाएगा, product बढ़ेगी तो product का amount बढ़ेगा, यानी concentration उसकी बढ़ेगी. तो ये सही है. Next statement, an increase in temperature always increases the rate. That's true, because kinetic energy increase होती है, collision frequency increase हो जाती है. Number third, an increase in temperature always increases the concentration of the product. Not at all. Right answer is B. Question number 34. Oh my goodness. Let's read the question. A chemist puts a sample of dilute aqueous hydrochloric acid into a beaker 1. Okay. She adds a sample of zinc and measure the rate of production of hydrogen gas. All right. So zinc is placed in dilute hydrochloric acid, and as a result, hydrogen gas is produced. Usko aapne collect kiya hoga over a period of time, and that's how we can find the rate of production of hydrogen gas. Okay. She then puts a different sample of dilute aqueous hydrochloric acid into beaker 2. She adds a different sample of zinc and measure the rate of production of hydrogen gas. The rate of the reaction in beaker 2 is greater than the rate of reaction in beaker 1. Which factors could helps to explain this observation? Surface area बढ़ाने से, concentration बढ़ाने से rate of reaction increase हो गया होगा. All right. So first statement read करते हैं. Reaction in beaker 1 has a higher activation energy than reaction in beaker 2.
ओके, हायर एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं होगी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कैटलिस्ट से चेंज होती है, राइट? ओनली कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। और इस पूरे केस सिनेरियो में कहीं पर भी कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और जब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो तो राइट आंसर इज सी, और सी पढ़ लेते हैं। जिंक इन बीकर वन इज लार्जर पीसेस, मतलब सरफेस एरिया कम है, यहाँ पर सरफेस एरिया बीकर टू में ज्यादा होगा, तो ये सही है। द एसिड इन बीकर वन इज लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। कंसंट्रेशन कम, रेट कम, बीकर टू में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, रेट ज्यादा होगा। तो मैंने यही कहा था कि सरफेस एरिया हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, या फिर कंसंट्रेशन हो सकता है। तो वो फैक्टर्स आपसे पूछ रहे थे, तो अंडर दिस सिनेरियो फैक्टर सिर्फ दो ही थे आपके पास। एक है सरफेस एरिया और दूसरा है गाइस कंसंट्रेशन। मैंने कह दी थी बात, लिखी नहीं थी लेकिन अब लिख भी दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। In some rice growing parts of the world, farmers use a combination of paddy fields and a fish farm. Rice paddy fields are flooded for much of the growing cycle, and water running of the fields flows through pans which where fish are raised. Nitrogen-based fertilizers are generally very soluble in water, which problems could result from farmer applying excess nitrogen-based fertilizer to their paddy fields. आप जानते हैं कि जब excess amount of nitrogen-based fertilizers हम अप्लाई करते हैं तो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि जब यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली जो फिशेस हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, यानी एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये सही है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल वाटर के अंदर कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड फंगाई ओवर वाटर सरफेस, तो ये भी ठीक है, एंड देयरफॉर इज द राइट आंसर। बेटा यूट्रोफिकेशन में ये तीनों स्टेजेस होते हैं, इसलिए आंसर इज ए। क्वेश्चन 36। Question 36. Okay, question 36. A sample containing 0.4 moles of calcium nitrate was decomposed by heating in a roaring Bunsen burner flame until there was no further decomposition. What are the products of this reaction? भाई पहले तो डिकम्पोजिशन बना लेते हैं, तो ये है कैल्शियम नाइट्रेट converted into calcium oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen gas। तो ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। अगर ये 0.4 मोल है तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना हो जाएगा, 0.4 मोल। तो 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इशू ये है कि नाइट्रोजन तो हमें मिलता नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सही है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन नहीं। सही है। एंड गाइस 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द की, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए डी कर दिया मैंने डायरेक्टली। क्वेश्चन 37। Which reagents when used in an excess can be used to make sodium lactate from lactic acid? Okay. दो चीजें इसमें देखने वाली। पहली चीज, you have functional group of alcohol and you have functional group of carboxylic acid। और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन कर सकता है, सोडियम कर सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन कर सकता है। अल्कोहल से
only sodium. तो examiner, oh my goodness, you guys have to be very very careful. ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप as it is रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। इसका मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पे हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किस किस से रिएक्शन करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा, ये ठीक है। सोडियम मेटल से करेगा, ये भी ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर लेगा, ये भी ठीक है। एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली। Question 38, chlorine atoms in the upper atmosphere causes the breakdown of ozone. Which statements are correct when referring to these chlorine atoms? Referring to these chlorine atoms. अच्छा देखो, रिएक्शन स्टार्ट हुआ क्लोरीन एटम से, मुझे वापस क्लोरीन एटम मिल रहा है, इट मींस इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट, द क्लोरीन एटम्स आर फ्री रेडिकल्स, दैट्स ट्रू। ये न्यूट्रल एटम है, एंड क्लोरीन एटम्स इन न्यूट्रल स्टेट आर आल्सो कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। That's what we have done in organic chemistry. देखो, ये है क्लोरीन एटम, right? It has how many electrons? 7. And this is chlorine radical. It also has 7 electrons. ये 2, ये 4, ये 6, and this one is 7. So this is chlorine atom, and this is chlorine radical. ये chlorine free radical. Both are same. Okay? I hope it makes sense to you. The chlorine atom are formed by heterolytic fission. Oh my goodness, heterolytic fission. Heterolytic fission जब भी होगी, chlorides are formed, not chlorine atom. सही है। इनफैक्ट क्लोरीन एटम्स हमेशा किसकी वजह से बनते हैं? होमोलाइटिक फिशन की वजह से बनते हैं। Okay, the third statement is wrong, and therefore B is going to be the right answer. Question 39. An unknown organic compound Z reacts with sodium to give combustible gas. Hydrogen gas. Okay. One product. Z does not give yellow precipitate with alkaline aqueous hydrogen. अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3CO ग्रुप भी नहीं है और CH3CHOH ग्रुप भी नहीं है और एब्सेंट। ठीक है, ये ग्रुप एब्सेंट है। तो सोडियम से रिएक्शन करवा रहा है, तो सोडियम से अल्कोहल रिएक्शन, एसिड रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और इसमें आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। पेंटेन 3-ol बना के देखते हैं भाई स्ट्रक्चर। 1 2 3, this is pentane 3-ol, and all alcohols react with sodium to give hydrogen gas, which is a combustible gas, and obviously इसमें CH3CHOH ग्रुप नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट नहीं रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। प्रोपेन 1-ol बना के देखते हैं जनाब। प्रोपेन 1-ol से भी रिएक्शन हो जाएगा सोडियम का, बिकॉज ऑल अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स, एंड ऑब्वियसली इस कंपाउंड के पास भी ये ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इसमें भी आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. Compound X has the molecular formula C3H6O3. Heating X under reflux with acidified potassium dichromate 6 forms this. Okay, reacting X with sodium borohydride forms this. What is the possible structural formula of X? Oh my goodness. इससे रिलेटेड ना 3 सिचुएशंस आ सकती हैं मेरे पास। सबसे पहली C3H6O3, सबसे पहली सिचुएशन मेरे पास होगी एल्डिहाइड। ओके, ओह 3 ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। माय गुडनेस, आई फॉरगॉट दिस इज 3 ऑक्सीजन एटम। दैट्स टफ, that's tough, that's tough. Three oxygen atom.
Okay, let me check. 1, 2, 3. Okay, this is okay. This is not going to be the right answer, guys, because अगर मैं इसको एल्डिहाइड ले लेता हूँ, देखिए ये रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट होगा, ये रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट होगा, और ये रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट होगा। बट मसला ये है कि इसमें 1, 2, 3 कार्बन है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसका मतलब ये एक्स नहीं है। इसका मतलब मैं क्लोज हूं अपने आंसर के। मैं कुछ और सोचता हूं। मैं एक्चुअली इसको रखता हूं कीटोन। एंड गाइस लेट्स सपोज मैं इसको प्राइमरी अल्कोहल कर देता हूं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी अल्कोहल will remain as it is, right? That's called trial and error technique. देखो CH2 as it is, CH2 as it is, ये कीटोन रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में। इसका फॉर्मूला कितना बन रहा है? 1, 2, 3 कार्बन एटम, ये सेटिस्फाई हो गया। 1, 2, 3 ऑक्सीजन एटम, ये सेटिस्फाई हो गया। 2 + 1 3, 3 + 3 6, ये सेटिस्फाई हो गया। एंड दैट is the structure of X, guys. So I've got the first structure of X. ये X डिटरमिन किया मैंने, सही है। इसको देख के डिटरमिन किया, तो CH2OH CO CH2OH, ये थर्ड स्टेटमेंट मेरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकता है 6 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए ना आपको, और ऑक्सीडेशन करनी है आपने। तो अब सेकंड वाले से देखते हैं, इससे देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है। देखो ये भी तो हो सकता है CH2OH CHOH एंड देन CHO। इसका फॉर्मूला भी क्या है? C3H6O3। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये एक्चुअली COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ मिल रही है, ये भी ठीक है, सही है। लेकिन ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि CH2OH ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट होगा, ये COOH एज इट इज रहेगा, लेकिन ये CH2 इसने दे दिया, जबकि हमारे पास यहाँ कार्बोनाइल है। इसका मतलब ये मैनेज नहीं हो सकता, ना ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो सकता है, ना ये CHOH में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।